next 4 months need to be utilized really well. 20% most important topics and themes can yield you 80% result. इसके notes अगर आपके पास रहेंगे तो then whole transient information will be there in one source. Maximum questions in areas से आ रहे हैं. That's a very important skill that you need to crack prelims. Be smart in tackling current affairs. ये बहुत important है. Why your questions are getting wrong. The day becomes more auspicious from the fact that UPSC has just released the notification for this year's prelims and the civil service exams. And the number of seats have been reduced 970, which means that the total intake for prelims would be around 12,000, or, for mains, it will be around 12,000, 13,000, right? So ultimately, we can see that less number of people will be selected for the mains exam this year. And that is why it is more crucial that we start our prelims preparation now. So that's why it's very important that next 4 months need to be utilized really well, right? So before we start, how many of you have already cleared prelims once? So the idea is that people who have not cleared prelims, I would say that 4 months is required for pre-preparation, because even if you are prepared for mains really well, and I've known a lot of people who have actually been very, very mains ready, but unfortunately because they are unable to clear prelims, उनका पूरा 1 साल बर्बाद होता है, right? So that's the main agenda of today's session. So I am Sajal Singh, and I am the academic director of Sarthe IAS. Before that, I was the academic director of Civils Daily and director of mentorship and mains at Vajiram and Ravi. So before we start, these are, after the mains result, these are some of the messages that I've received. So 230 of my students are giving interview this year, and many of them will get rank. And before we start, this is the offline program that we are launching today, the batch 2, which will start from 12th February under my guidance. So in this program, I'll be with you every day, not every day, every second day. And ultimately, we will be solving tests. And after the test, we'll be having a discussion. And then after that, you can meet me, and we'll have a report card based system. So the idea is that it's not just important to give tests. We need to identify the gaps also, that why your questions are getting wrong. So that is the basic idea of this program also, that we will try to identify your gaps, and based on those gaps, we will work to improve. So the top 25 students in this batch, so they will be ranking every day outside, and top 25 students I'll personally mentor till prelims. Rest of the candidates also, there will be one-to-one mentorship session every month, and my earlier students like Sachin, Akash, and many of them, they will also mentor through a group session. So you can ask, or you can probably ask for more details from our counselors sitting outside after the session. Let's start with the session first. So general suggestions about prelims paper. One very important thing is that you need to enjoy the process. The idea is that you can only clear prelims if you have not enjoyed the process, which means that treat it in a way that, it's a full-time job. See, the idea is that many of you are preparing full-time. How many of you are preparing full-time? Almost all of you, right? Now, if let's say you would have been doing job, you would have been studying for 8 hours every day, right? The idea is that treat your preparation like your job. This is your job. So when you are doing a job, you cannot afford to waste a day, right? And just like you are going to office, if you're doing a job, the job here is to study. And since this is your job, this is your full-time job, you need to enjoy your job. If you don't enjoy your job, you will not work hard. You'll never be productive. And in your office job or corporate job, if you are not productive, then you are thrown out. In the same way, in this UPSC exam, if you are not productive, if you are not utilizing your time well, you are thrown out. And you can only be productive if you enjoy the process, which means that you need to enjoy the fact that you are getting new knowledge. And after this whole journey, you will be much more better read than 99% of India's population. And secondly, you need to also build
connections between different subjects. For example, history is linked to economy, it is linked to society. Find those interconnections. For example, if we talk about history, we all know that history, there are periods when we find grand monuments. So what does that reflect? It reflects that the economy of that time was doing well, because otherwise you will never find these grand monuments. Or let's say if we talk about Tughlaq period, we don't find those grand monuments. Why? Because the Sultanate was struggling through economic problem, especially under the MBT, right? So all these interconnections you have to build while studying, that further leads to you more enjoying the process, right? Now the idea is that, the problem is that we tend to focus on certain subjects that we are good at, but that's not the case, right? When I started preparation, I have given 5 attempts. I did not give my 6th attempt. I gave 5 attempts. I cleared pre all the time. Minimum 20 marks high, then cut off, or maximum 40 marks. So when I started my preparation, I did not like geography that. And, somehow I was ignoring that. But the idea is that you need to build that interest in any subject, even if you don't like it initially. You can, now we have AI, we have Chat GPT, we have very good simplified videos on YouTube. जो भी source लो, if you feel that the books are really boring, तो आप क्या करो कि आप books को छोड़ दो पहले you develop your concept through, let's say, easy videos, easy blogs, and once you do that, then go back to the textbook, right? So that's a very important thing, that you need to enjoy the process. Second, follow the 80 to 20 Pareto principle, which is actually, or which shows the importance of PYQ, right? The idea is that you don't need to study everything under the sun. 20% most important topics and themes can yield you 80% result. And that's the sweet spot that we need to hit. Because see, it does not matter whether you are studying 12 hours, 14 hours, 16 hours. Animesh Pradhan, who was also part of the mentorship program which I was heading at that time, he had just 5 hours every day. But 5 hours, he used to ensure that 5 hours are given to those topics, because he did not have the liberty to study the NCRTs, or at least the 6th, 7th NCRTs, because he was working full time in Indian Oil, right? So 5 hours, he made a plan like this, कि भाई वही चीज पढ़ूंगा जो effective हो, चाहे pre के लिए, चाहे mains के लिए, right? So that's the main thing that you need to focus upon. We will have a special part on the PYQ also. So PYQ के लिए भी हम last में discuss करेंगे कि कैसे PYQ को you need to analyze. So I'm leaving that bit for now. Then develop analytical skills. That's a very important skill that you need to crack prelims. For example, if you see this question that is asked last year, Italy, Japan, Nigeria, South Korea, South Africa, which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rate or aging population or declining population? What is the answer? A. Why not South Africa? Why not Nigeria? They are African countries and developing countries, right? And if we have read the theory of demographic transition, we know that it is the developed countries that are at the stage 4. Developing countries are either in stage 2 or stage 3, right? So in that context, and also the HDI ranking, right? Both these countries are medium and low, right? So if you use that analytical skill, then you can solve this question very easily, right? Or if you see this question, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing/emigrating to other countries. Right or wrong? It is wrong, right? Because if something like that would have happened, it would have been a miracle. A country that is somewhere, the poorest country in the world, if this kind of a miracle would have happened, we would have known through the news, right? And the beauty of these questions are, that's why I like these questions, because the beauty is that if one statement is wrong, then second statement is automatically right, because you don't have an option. If statement 1 is wrong, then we are left with only the answer D, right? So that's very important, that you
develop that analytical ability, especially to solve questions of economics, polity, some ways geography. तो वो important है. आप सिर्फ रॉट लर्निंग करते रहोगे, so it may help you in certain subjects, but majority of the questions आप solve नहीं कर पाओगे, especially जो current pattern है. Then very important is effective revision is the key. Whatever you are studying. See, the idea is that when you are in your graduation, you are studying one subject, or broadly you are, studying one major subject. Here you are studying 9-10 subjects, and you are studying every day something different. Now, retention is something which is very difficult. So one very good way to revise is that what you can do is that you can divide the information, whatever you are reading, into two categories. One is unforgettable, second is transient. Transient means that you will forget if you don't revise it. For example, if we take this example, so, if let's say you are studying about Maurya, so Dhamma is something that if you have studied about Dhamma and the principle of Dhamma, you will not forget it even after 6 months, 3 months, 9 months. Right? If you have understood the essence of Dhamma, it will be there in your mind even after 6 months, 9 months. But if if we talk about the Ashokan sites, major pillar, minor pillar, rock edict, right? This is the information that if you don't revise it again and again, you will forget after 1 month. It is this information we call it as transient information. So whatever subject you are reading, आप उसको डिवाइड करो. जो ट्रांजिएंट इंफॉर्मेशन है इसको आप बार बार रिवाइज करो. ये दिस विल रिक्वायर मल्टीपल रिवीजन बिकॉज यू कैनॉट रिवाइज एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. सो दिस विल इंश्योर कि आपका 60% पार्ट ऐसा हो जाएगा सिलेबस का जो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू नो इट्स अनफॉरगेटेबल. You if you have understood it, it will be there in your mind. ये जो 40% इंफॉर्मेशन है ये आपको इंश्योर करना है कि आप इसके नोट्स जरूर बनाओ. बिकॉज इसके नोट्स अगर आपके पास रहेंगे तो देन होल ट्रांजिएंट इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन वन सोर्स. एंड यू नीड एंड व्हाट यू कैन डू इज हर 10-15 दिन में यू कैन गो बैक टू इट, रिवाइज इट. तो मल्टीपल रिविजन्स विल रिक्वायर्ड कि आप ये आपके दिमाग में आ पाए और आप इससे सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन. सो नोट्स भी जो आपके बनेंगे वो ट्रांजिएंट इंफॉर्मेशन के बनेंगे प्रीलिम्स में. अनफॉरगेटेबल वाले को छोड़ दो, वो आप जो है एक बार देख लेना, जब भी आपको होगा बुक से आप देख लोगे, आप टेस्ट करते हो उसमें भी रहेगी वो. बट ये अनफॉरगेटेबल, ये जो ट्रांजिएंट इंफॉर्मेशन है दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो सब्जेक्ट वाइज फ्रॉम इकोनॉमिक्स टिल लेट्स से पॉलिटी, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट को नाउ व्हेनेवर यू आर रीडिंग डिवाइड दैट इनटू ट्रांजिएंट एंड अनफॉरगेटेबल. देन अटेंशन टू डिटेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको मॉक में करना है कि इंश्योर करो. और साथ में व्हेन यू आर डूइंग द पीवाईक्यू कि इफ यू आर डूइंग अ मॉक यू नीड टू सी कि अगर कोई क्वेश्चन इजी है तो ऐसा तो नहीं कुछ ट्रिक है. या लेट्स से इफ the options are, or let's say if the statement says incorrect and you feel it's correct and you have probably seen that correct and that's how you have marked it. So it's very important that you give very special attention to the questions of the mocks and also the PYQ. When you're doing the analyze or when are you analyzing the PYQ, see कि कौन सी language use कर रही है UPSC, how frequently it is using assertion region, how frequently it is using incorrect as an option. So that's very important. Then timetable. So this was the timetable of AIR 45 this year, Ramya. So Ramya failed in first 4 prelims. 5th prelims mein he finally qualified and got AIR 45. So that's what I'm saying. How many of you have, let's say, given more than 3 attempts and have not qualified for prelims? So Ramya must, she should be your idol because, she first 4 attempts could not clear prelims. 5th attempt cleared prelims, mains, interview, 45 rank. So idea is that timetable इसलिए बहुत important है क्योंकि timetable is something कि that keeps you on track. If you don't have a timetable, then you don't enjoy the process because चलती जा रही है आपकी तैयारी. You still have 120 days left. अर्जेंसी नहीं आएगी आपके पास.
See, the idea is that how many of you have read Atomic Habits? तो उसमें क्या बोलते हैं कि you need to improve 1% every day. So see, the idea is that कि we all are here to clear prelims, but prelims are 4 months away, mains are 7 months away, final round is almost 1 year away from here, right? Now the whole idea is that कि how can you remain motivated or consistent when your exam is 4 months, 6 months, 7 months away? You can only remain focused, consistent is when you have a timetable or when you have a smaller goals. So smaller goals होना बहुत जरूरी है. See, many of you might have been focusing till mains अभी और प्री आप स्टार्ट कर रहे हो. अब आपका अगर फर्स्ट टेस्ट का ही गोल है कि आपको 150 प्लस लाना है मॉक में या 100 प्लस लाना है मॉक में, तो आई थिंक इट्स समथिंग विच इज नॉट अ वेरी डिसेंट, आई वुड से, और वेरी ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आपको यू नो दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल. बट इनिशियली आपका गोल होना चाहिए कि भाई लेट्स से आई एम गिविंग द टेस्ट 70 आ जाए, 80 आ जाए, एंड देन प्रोसेस ये करना है कि ग्रेजुअली आप इंप्रूव करो 1% रूल के हिसाब से. ठीक है ना? सो द आइडिया इज दैट कि नेक्स्ट 4 मंथ्स तक हैव अ टाइम टेबल लाइक दिस वेयर यू डिवाइड इनटू टाइम स्लॉट्स कि यू नो लेट्स से 6 to 9 ये, एंड इसको वीकली बेसिस पे बनाओ, आई वुड से वीकली बेसिस पे. एंड इस टारगेट को यू हैव टू अचीव दिस टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली व्हाट यू नीड टू डू इज कि आफ्टर यू अचीव द टारगेट यू ऑल्सो हैव अ गोल ऑफ मार्क्स. Initially start gradually. Don't start with very high marks expected. You know, initially start with low marks and then you can gradually increase your goal. Now, what you need to do is that, let's say if you have finished this timetable, implemented this and have given the test and have achieved your goal, let's say 70 was your goal, you have achieved that, treat yourself. That's one stage completed. Like we play a video game. वीडियो गेम में क्या होता है? देयर आर स्टेजेस, यू नो, फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज, और एवरी स्टेज बिकम्स टफर. इन द सेम वे इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, gradual improvement is something that we are looking at, and smaller goals will help you reach towards the bigger goal. What is the bigger goal? To clear prelims. But वो bigger goal बिना smaller goal के achieve नहीं होगा. And after you have, let's say you have got 70 marks, you need to also analyze कि मैंने गलतियां कहाँ करी, किस गैप की वजह से मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं. एंड नेक्स्ट टाइम जब आप अपना टारगेट बनाओगे, गोल बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे, यू हैव टू इंश्योर कि उस स्पेसिफिक गैप पे मुझे वर्क करना है और उसको ग्रेजुअली इंप्रूव करना है. तो टोटल 6 गैप्स है. आई हैव ऑल्सो यू नो रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब सो यू कैन सी दैट. सो वो 6 गैप्स के अंदर ही आता है. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है प्री का, तो दैट कम्स अंडर दैट 6 गैप्स. सो अब आइडेंटिफाई करो कि किस वजह से योर क्वेश्चंस आर गेटिंग रॉन्ग एंड देन वर्क अपॉन दोज गैप्स ऑन अ वीकली बेसिस. टारगेट इज कि बाय द टाइम यू आर नियरिंग द प्रीलिम्स, you are decently doing well or you have decently rectified all your gaps. Then knowledge retention is important, and for that we need to make notes. How many of you have notes? Now idea is that somebody has made 100 pages notes. Well, that's why we call कि note making जो होती है ना pre के लिए, वो almost 2-3 stages में होती है, right? Stage 1 होता है कि आप बुक से डायरेक्टली पढ़ते हो एंड व्हाट यू डू कि आप उसी में हाईलाइट करते हो. सेकेंड स्टेज होती है कि जहाँ पे आप 100 पेजेस के नोट्स बनाते हो, जस्ट लाइक यू नो लक्ष्मीकांत से अपने नोट्स बना लिए. और मोस्टली जो आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, जो हमारी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे वो लिखवाते हैं, राइट? सो वहाँ पे क्या होता है, यू नो द नोट्स आर रियली बल्की, 100 पेजेस, 200 पेजेस, राइट? अब आप क्या करते हो, उस 100 पेज 200 पेज नोट से आप बनाते हो थर्ड लेयर ऑफ नोट्स. थर्ड लेयर ऑफ नोट्स होते हैं जो 20 पेज के नोट्स होते हैं, ठीक है ना? 20 पेज के नोट्स होते हैं, एंड वी कॉल इट एज 1 पेजर नोट्स, कि एक टॉपिक 1 पेज में खत्म, राइट? अब इस 1 पेजर नोट्स में डेफिनेटली हर इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है. इस 1 पेजर नोट्स में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रहती है जो कि ट्रांजिएंट इंफॉर्मेशन है, जो आप भूल सकते हो,
राइट? सो दैट इज समथिंग दैट शुड बी योर गोल कि आपको 20 पेज के, वन ऑफ माई स्टूडेंट आदित्य पांडे यार 48, if you have seen his notes, how many of you have seen his notes? Yes. So you know he had made 3 layers of notes, 4 layer, 100 पेजेस के भी बनाए हैं, 30 पेजेस के भी बनाए हैं, 3 पेज के भी बनाए हैं। 3 पेज के नोट्स उसने बनाए थे सिर्फ लास्ट डे के लिए, कि लास्ट डे एग्जाम से पहले सिर्फ वो इंफॉर्मेशन रहेगी जो अगर मैंने लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं करी तो मैं भूल जाऊंगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बनाओ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव 1 पेजर नोट्स? बाकी भी बनाओ यार। दैट्स व्हाई व्हेन आई एम डिवाइडिंग द डे, तो 1 घंटा मेरे नोट्स के लिए भी रखा है। वॉट एवर यू आर रीडिंग, जो भी हर दिन की ट्रांसजेंट इंफॉर्मेशन है, 1 घंटे उसको नोट्स में लिखते रहो, सो दैट when you are doing the final revision last 15 days पहले, you go through those notes। अच्छा, हाउ टू मेक नोट्स वो भी मैं एक एंड में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट बी risk averse and you cannot be risk taker. You have to hit the sweet spot. Everybody has to identify your sweet spot in next 4 months. For example, I had identified my sweet spot was 80 questions. 80 questions used to give me maximum marks in every prelims, right? So that is something which is very important कि next 4 months में जब आप mock दो, हर बार अलग अलग questions करो। एक बार 70 करो, 75 करो, 80 करो, 85 करो, 90 करो, 95 करो, 100 करो, एंड सी हाउ मच यू आर गेटिंग। ठीक है ना? बाय अप्रैल एंड और बाय लेट्स से बाय मे फर्स्ट वीक आप अपनी फाइनल स्ट्रेटजी को लॉक करो कि ओके आई विल गो विथ 80 क्वेश्चंस। ठीक है ना? सो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू डू डिपेंड्स ऑन कि आपके लिए बेस्ट क्या है। एंड सेकेंड, एक और चीज, क्वेश्चन का लेवल कितना टफ है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Because the idea is that if the question is easy, for example 2016 वाला पेपर था, the moment I saw the paper I thought it's very easy, because when the first round I could do around 50 questions, तो मैंने कहा ये तो 100 तो मेरे अभी बन गए। So ultimately, definitely, and it is easy for me, it is easy for everyone else also. So that's how, if the paper is as easy, then you will have to increase your number of attempts. You will have to attempt 90 questions. ठीक है ना? सो दो चीज का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात, रिस्क एवर्स बिल्कुल नहीं बनना है कि आप 60 क्वेश्चन ही करके आ रहे हो, बिकॉज सम ऑफ देम विल गेट रॉन्ग। और बिल्कुल रिस्क टेकर भी नहीं बनना है कि XYZ रैंक करने बोल दिया तो आई विल आल्सो डू 95 क्वेश्चंस। दैट स्ट्रेटजी माइट हैव वर्कड फॉर विद दैट पर्सन, बट द सेम स्ट्रेटजी विल नॉट वर्क फॉर यू। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 4 मंथ्स में। हाँ, बी स्मार्ट इन टैकलिंग करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है, अब देखो पहले क्या होता था, यूपीएससी यूज्ड टू आस्क डायरेक्ट करंट अफेयर्स। अभी क्या है, डायरेक्ट तो पूछ ही रहे हैं, डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट बहुत पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड लास्ट ईयर, राइट, अबाउट द 8th शेड्यूल। अब ये लग रहा है आपको स्टैटिक, बट दिस वॉज आस्क्ड बिकॉज उस पूरे साल देवर डिमांड्स की टुलू लैंग्वेज, खासी लैंग्वेज, इट शुड बी इंक्लूडेड। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, Chanchud also gave this judgment कि we cannot direct the central government to amend the list. It is the choice of the central government which language they want to include, right? So वो news में था, that's why it was asked. तो जो direct है वो तो है ही। इसके अलावा जब भी कोई न्यूज आ रही है स्टैटिक की, तो ट्राई करो कि उसमें कौन सा स्टैटिक कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन था CDS वाला, अब this was asked last year because CDS was appointed last year, so that's why this question was asked. ठीक है ना? Similarly, intelligent guessing, I keep it at last because I believe that अगर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़े तो अच्छा है, but ultimately it do helps. Even when the pattern is changed, there are at least 10 questions still you can solve it using your intelligent guessing, or we call as theorems, we call as hacks, we call it at elimination. For example, this question was asked last year. Ab, if you know the ideology कि भाई Rajgopalacharya was a champion of free market, we all knew, anybody who has studied Bipin Chandra knows about it, that Rajgopalacharya was the part of the Congress right wing, right group. So socialist party तो हो ही नहीं सकता है, it's not possible. And Acharya Naren Dev was part of the Congress Socialist Party. तो सोशलिस्ट पार्टी में थे, एंड स्वतंत्र पार्टी समथिंग विच इज चैंपियन ऑफ द फ्री मार्केट,
सो इफ यू कैन यूज दीज लॉजिक्स यू कैन इजिली सॉल्व इट, कि आपके जो है ओनली 3 होंगे इसमें. या फिर इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, a country needs to be a member of international grain council for exporting or importing rice and wheat. Again, very extreme, वेरी एक्सट्रीम. कि आप अगर एक के मेंबर नहीं होंगे तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो. WTO के लोग मेंबर नहीं थे, उसके बाद भी लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे. तो एक काउंसिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है कि अगर आप इसके मेंबर नहीं हो तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो. तो यूजिंग दीज लॉजिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग आप कर सकते हो. तो ये भी आपकी थ्रू मॉक्सी, थ्रू MCQs ही होगी और थ्रू PYQs ही होगी कि यूपीएससी कहां पे खेल रहा है हमारे साथ. ठीक है. या फिर ये क्वेश्चन था, देखो लास्ट ईयर का ही है अगेन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. द स्कीम guarantees a minimum package of antenatal care service to women in their second and third trimester of pregnancy and 6 months post delivery health care service in any government health facility. Any, again too extreme, it is in designated health facility, not any. So extreme statements अभी भी UPSC पूछ रहे हैं. The words like can, the words like maybe, sometimes, so these are the words जहां पे चीजें ठीक ही होंगी. ठीक है ना. अब what should be your daily schedule if we talk about, ये देखो अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मैंने एक मैक्रो लेवल पे जो मेरे को लगता है कि ठीक है कि 4 hours यू नीड टू प्रिपेयर योर स्टैटिक पार्ट. let's say polity, let's say economy, let's say history, let's say CSAT, but 4 hours आपको स्टैटिक पार्ट पे देना ही है रोज. 2 hours उसी सब्जेक्ट का मोस्टली प्रीलिम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स. लेट्स से इफ यू आर डूइंग पॉलिटी, सो पॉलिटी से रिलेटेड लास्ट 1 year 1.5 years का जो करंट अफेयर्स है यू नीड टू रीड एवरी डे. देन उसके बाद 2 hours एवरी डे 1 टेस्ट. ठीक है ना. इट कुड बी 50 marks, इट कुड बी 100 marks, बट एवरी डे टेस्ट करो. टेस्ट तो करो ही, बिकॉज सी द आइडिया इज दैट द मोर यू गिव टेस्ट the more you will do effective revision. because होगा क्या कि आप टेस्ट देते जाओगे, आपको ये चीज पता लगती रहेगी कि उस चैप्टर से जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था कितनी चीजें आप रिटेन कर पाए हो, क्या आपके वीक एरियाज है. सो व्हेन यू रिवाइज इट नेक्स्ट टाइम यू विल फोकस ऑन दोज वीक एरियाज. 1 hour करंट अफेयर्स, सो दैट इज द जनरल करंट अफेयर्स. सो यू नो द न्यूज़पेपर और प्रॉब्ली द डेली ब्लॉग्स, एडिटोरियल्स, ये चीज मत छोड़ो जो अभी आकाश ने भी बोली थी कि एटलीस्ट 1 महीने पहले था. बिकॉज होगा क्या कि आपने अगर हर चीज छोड़ दी तो जब आप प्री के बाद आओगे इतना लंबा बैकलॉग हो जाएगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सी द आइडिया इज नॉट जस्ट टू क्लियर प्रीलिम्स, राइट. द आइडिया इज टू क्लियर द एग्जाम. फॉर दैट यू हैव टू आल्सो क्लियर द मेंस एग्जाम. दिस टाइम प्री और मेंस के बीच गैप उतना है नहीं. सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ 5 month 6 month बैकलॉग ऑफ करंट अफेयर्स, राइट. सो 1 hour आपको करंट अफेयर्स करना ही है एटलीस्ट टिल अप्रैल एंड. मई से यू कैन काइंड ऑफ स्किप इट. 1 महीने का ठीक है, चलता है. 1 hours नोट मेकिंग, कि जो आपको ट्रांसजेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है आप लिखते जाओ डेली बेसिस पे. एंड दैट्स हाउ यू विल हैव अ नोट्स, प्रिपेयर्ड नोट्स जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स. ठीक है ना. सो दैट्स हाउ आपको अगले डेली करना है. अगर हम डे वाइज डिवाइड करें तो यूजली ये कुछ अगर हम देखे जाए, अगर पैटर्न है जो लास्ट 10 years का, तो यूजली, और सॉरी लास्ट 5 years का, तो यूजली इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो बेस्ड ऑन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, आप अगले 100 days की अगर हम बात करें या फिर 120 days की हम बात करें, तो इस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो. 20 days फॉर पॉलिटी, 16 days फॉर हिस्ट्री, 15 days फॉर इकोनॉमिक्स, 15 ज्योग्राफी, 12 इन्वायरमेंट, 7 साइंस, 15 day रिवीजन. बाकी जो टाइम बचा है वो आप CSAT को दे सकते हो. सो दैट्स हाउ यू कैन डिवाइड योर डेज, बिकॉज CSAT अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी पीपल आर फेलिंग इन CSAT. तो इस बेसिस पे रखो, बट ये इंश्योर करना है कि लास्ट 15 days हमको सारा रिवाइज करना है. एंड ये लास्ट 15 days में आपके वो ट्रांजिएंट नोट्स काम आएंगे जो आप रोज 1 घंटा दे रहे हो जिस पे. ठीक है ना. सो दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर हम मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की बात करें तो बेस्ड ऑन द PYQ दीज आर द एरियाज जहां पे आपको स्पेशल फोकस करना है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस इन एरियाज से आ रहे हैं. पार्लियामेंट हो गया,
बेसिक्स हो गया, बेसिक्स में जैसे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं ये एक बार देख लेना। द रीजन बीइंग कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ रहा है उनकी डेफिनेशन हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से मिलती है कि लिबर्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है। फिर इंपॉर्टेंट कमिटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर उसके बाद फेडरल रिलेशंस और सेंटर स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, जुडिशरी। दीज आर द इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां पे मैक्सिमम फोकस आपको देना है इन पॉलिटी। देन इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स में, तो न्यूली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द आइडिया इज दैट कि हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे नॉन फंजिबल बॉन्ड्स पे पूछा था लास्ट ईयर, सिंडिकेटेड लेंडिंग पे पूछा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे पूछा। तो इस टाइप में जो कुछ फैंसी इकोनॉमिक्स के टर्म्स अगर आप देखते हो न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी, तो वो उस पर आ सकता है। देन आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और इसमें मनी मल्टीप्लायर पे यूपीएससी हैज आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चंस इन लास्ट 6-7 इयर्स। तो आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे एप्लीकेशन और स्टैटिक पार्ट दोनों पे आपको फोकस करना है। फिर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट आर इन न्यूज, इंस्टीट्यूशंस दैट आर इन न्यूज। देन इन्फ्लेशन एंड कॉजेज, इसके मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा पूछ रहा है। एक्सटर्नल इकोनॉमी मीन्स मोस्टली यूएस में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, तो एक्सटर्नल इकोनॉमी, और यहाँ पे भी मैक्सिमम एप्लीकेशन पूछ रहा है। तो इसका एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ ट्रम्प इज इन पावर या रुपी हैज बीन फॉलिंग, सो कितना इसका एक्सटर्नल लिंकेजेस है, ऑल दैट यू हैव टू गिव स्पेशल फोकस। बैंकिंग सेक्टर अगेन वेरी हाई टॉपिक। फिस्कल पॉलिसी में अगेन मोस्टली एप्लीकेशन पूछ रहा है ज़्यादा, तो एप्लीकेशन पार्ट आपको करना है कि अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है, लेट्स से सब्सिडी से क्या होता है, ऑल दैट। उसके बाद कैपिटल मार्केट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आपको इकोनॉमिक्स में देखना है। फिर इन्वायरमेंट में 19 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 10 years फ्रॉम pollutants एंड इट्स सोर्सेज, सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोटा मोटा अगर आप मान के चलोगे तो 15-20 pollutants ही हैं, और उनको अगर आपने देख लिया तो एक क्वेश्चन पक्का ही है, वहां से हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। Conventions and organizations, again 23 questions have been asked in last 10 years, so average 2.3 questions have been asked from this. Then flora and fauna, again very important. Flora and fauna पे अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 सालों में कितने सारे लायन, एलिफेंट, रेड सैंडलर्स, सो हर साल फ्लोरा एंड फॉना पे दे हैव बीन मेनी क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। क्लाइमेट चेंज अगेन इंपॉर्टेंट एरिया। अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव द एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन, इस पे ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपका शुगर केन सस्टेनेबल इनिशिएटिव या सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन। तो इस टाइप के जो सस्टेनेबल और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हैं दैट हैज बीन ऑल्सो बीन न्यूज। बेसिक बुक्स और इन्वायरमेंटल टेक्निक्स जैसे बायोरॉक टेक्नोलॉजी पे पूछा, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। 6 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 10 years। उसके बाद इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो हैं इंडिया में, सत्याग्रह एंड ऑल। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय यूरोपियन पावर्स, जिसमें आपका पोर्चुगीज, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी सारा आ जाएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड देयर एसोसिएटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसके तो आप प्रॉपर नोट्स बना लो। मेक अ लिस्ट ऑफ लेट्स से 40-50 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, उनसे एसोसिएटेड पार्टीज, न्यूज़पेपर्स, सत्याग्रह, एनी अदर इंपॉर्टेंट इवेंट, बुक्स, तो वो आप लिस्ट बना लो। आई थिंक यू कैन रिवाइज दैट जस्ट बिफोर द एग्जाम। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, डिफरेंट जो रिफॉर्म्स हैं, डिफरेंट रिवॉल्ट्स, और साथ में इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। देन साइंस एंड टेक, सो साइंस एंड टेक में अगेन IT सेक्टर, बेसिक्स तो अब इंपॉर्टेंट हो ही गया, एवरी ईयर दे आर आस्किंग वन और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इट। IT सेक्टर, जेनेटिक रिलेटेड डेवलपमेंट,
मतलब आपका डीएनए, आरएनए, वैक्सीन्स, उसके बाद आपका स्पेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स, डिफेंस अगेन इंपॉर्टेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंडिया रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एआई, बिग डेटा, ड्रोन्स और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू साइंस इन न्यूज, जैसे ट्राइक्लोसॉन पे था, एस 2 पे था. सो दिस इज फॉर साइंस एंड टेक. सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आई थिंक दीज आर द बेसिक सोर्सेज जो आप यूज कर सकते हो. आर एस शर्मा, सारथी के नोट्स कर सकते हो. इसके एडिशनल लूसेंट हो गया, तमिलनाडु की क्लास 12 हो गया. मेडिवल में सतीश चंद्रा क्लास नोट्स हमारे सारथी के. मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम, अभी मुदित सर ने भी एक वीडियो बनाया था कि ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस जो हैं 28 में से लास्ट 4-5 साल के, दे आर सॉल्वेबल यूजिंग स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास नोट्स देख सकते हो. आर्ट एंड कल्चर में इंडियन आर्ट फॉलोड बाय सीसीआईटी वेबसाइट, नितिन संगानिया और गूगल. सो आई थिंक दिस इज वेयर यू कैन प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर. ज्योग्राफी में आई थिंक एनसीईआरटी, जीसी लियोंग इज गुड. क्लास नोट्स आप देख सकते हो. पीएमएफआईएस का भी जो है दैट्स ऑल्सो गुड. ठीक है. इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में डॉक्टर शिविन की जो क्लास नोट्स हैं उनको देख सकते हो. एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, फिर आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बाय शंकर आईएएस, इनको आप देख सकते हो. और मोस्टली आपको करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा क्योंकि इन्वायरमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड हैं. पॉलिटी में अगेन क्लास नोट्स लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय पीएम बख्शी. मैक्सिमम तो आपके यही से आ रहे हैं. और इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन ऑल्सो रेफर टू द क्लास 11th and 12th पॉलिटिकल साइंस बुक. तो ये आपके हो गए मेजर सोर्सेज. इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अगेन डॉक्टर शिविन के क्लास नोट्स, एनसीईआरटी की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स की, या फिर आप कोई भी एक अच्छी बुक जिसमें संजीव वर्मा है या फिर रमेश सिंह है, इनमें से आप. लेकिन देखो, एक बुक को आइडेंटिफाई करो, उसी को रिवाइज करो, 10 सोर्स मत करो. ठीक है. द आइडिया इज दैट आइडेंटिफाई अ गुड सोर्स, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. प्लस जो आने वाला बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है, रीड दैट केयरफुली, एंड प्लस द करंट अफेयर्स. साइंस एंड टेक में भी डॉक्टर शिविन के क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6 to 10 if you have time, and mostly you have to follow the current affairs. Now let's come to the next part, which is how to do the PYQ analysis. So basically there are 5 ways through which you can do scientific PYQ analysis. सबसे पहले फर्स्ट चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा, broader themes from which UPSC is asking question. So every subject की you have to identify 10-12 broader themes for that 80 to 20% वाला रूल, कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक सब्जेक्ट, इफ यू एनालाइज फ्रॉम 2010 यू नीड टू आइडेंटिफाई कि अच्छा इकोनॉमिक्स में ये 15 ब्रॉडर थीम्स है. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, ये पॉलिटी में पार्लियामेंट इज अ थीम जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. Now you know that you have to give special focus on parliament and you need to solve maximum questions from parliament. ठीक है ना. इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं. कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, इंश्योर करो कि पार्लियामेंट से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और पार्लियामेंट के एटलीस्ट 2-3 पेजों पे आप नोट्स बना लो, एटलीस्ट वो इंफॉर्मेशन जो आप भूल सकते हो. ठीक है. सेकेंड इज यू हैव टू आइडेंटिफाई the narrow themes from which question is coming. अब ये तो ठीक है, ये तो इजी है, बट अब लेट्स से पार्लियामेंट के अंदर है. पार्लियामेंट के अंदर कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं? बिल से आ रहे हैं. बिल से मैक्सिमम इफ यू सी 6 to 7 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम बिल्स, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लास्ट 7 years. 6 to 7 क्वेश्चन. तो ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है. लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आए थे. राइट. सो ये भी आपको करना पड़ेगा कि जब आपने ब्रॉडर थीम्स आइडेंटिफाई कर ली, अब जाओ कि इन ब्रॉडर थीम्स के अंदर कौन से एरियाज हैं जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब ये एरियाज विल बी माय नंबर 1 प्रायोरिटी. इस हिसाब से करना पड़ेगा आपको कि नंबर 1, नंबर 2, और दिस इज समथिंग विच आई विल लीव फॉर द लेटर पीरियड. तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स कि प्रायोरिटी नंबर 1 इज दिस इज वेयर आई विल
फोकस मैक्सिमम, देन इट्स प्रायोरिटी नंबर 2. लेट्स से अगर कोई टॉपिक है जिससे 10 साल में 2 ही क्वेश्चन आए हैं, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 2. एंड देन फाइनली द लो प्रायोरिटी एरियाज विच यू विल स्टडी बट यू विल नॉट स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम ऑन इट. ठीक है. थर्ड लेवल पे आपको क्या अब देखो ऐसे ये क्वेश्चंस आए हैं सारे बिल्स पे आए हैं. थर्ड लेवल पे आपको करना पड़ेगा कि यू नीड टू ऑल्सो चेक फ्रॉम 2010 जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा. ठीक है ना. यू डोंट नीड टू जस्ट फॉलो द ब्रॉडर थीम. इस ब्रॉडर थीम के अंदर जो ऑप्शंस दिए हैं यू हैव टू गूगल अबाउट दैट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2022. Which one of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? Right. So it has 4 statements. Right. One statement is C. Sangam poems have no reference to warrior ethics. That's the statement. Right. Now when you see this question, आप चारों को गूगल करो. ऐसे नहीं सिर्फ जो राइट है उसको गूगल करोगे, चारों को गूगल करो and get some information. Build your notes अराउंड दिस. क्योंकि देखो नेक्स्ट ईयर आप देखोगे तो दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुतुल एज मेंशन्ड इन संगम पोएम्स. इसमें आंसर क्या था? डी. अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ. तो ये क्या है? ये वॉरियर एथिक्स ही तो है. सो दैट्स हाउ यू नो एनालाइज द पीवाई. क्योंकि जो राइट आंसर है वो तो है ही, जो रॉन्ग भी है उनको भी गूगल करो एंड वहां से अपने नोट्स और स्ट्रेंथन करो. क्योंकि देखो नेक्स्ट बैक टू बैक पूछ लिया इन्होंने कि यहां इन्होंने पूछा जो ऑप्शन रॉन्ग था, अगली बार उस रॉन्ग ऑप्शन से ही पूछ लिया. देखो अब ये देखो इसमें कि इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर बीइंग इन न्यूज रिसेंटली. चैड, गिनी, लेबनन, तुनीजिया. ये 22 में था. नेक्स्ट ईयर 23 में क्या किया इन्होंने? जो आपके रॉन्ग वो थे इसी से पूछ लिया कुछ. चैड, गिनी, माली एंड सूडान. तो यही से आपसे पूछ लिया आपसे ये सवाल. या फिर अगर आप देखो यहाँ पे कि 2022 में दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे 3 थे. अब आपने अगर गूगल करते आप फंगी को तो फंगाई में आपका गूगल में एंड्स भी आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा? एंड से पूछ लिया. सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगाई. सो ऐसे पूछ रहे हैं आपसे. तो दैट्स व्हाई व्हाटएवर बी द ऑप्शंस, रॉन्ग राइट सबको गूगल करो और अपने नोट्स बनाओ. ठीक है. फोर्थ, यू हैव टू नोटिस ट्रेंड्स एंड कॉमन पैटर्न्स दैट आर इमर्जिंग आउट ऑफ PYQ. मतलब द वर्डिंग्स and the trends. For example, UPSC has a trend of asking questions, map wale questions from areas that are in news, and they have done it back to back. 22 mein they ask about who are the borders or which of the above have borders with Afghanistan. Right? Why? Because 2021 mein Taliban took over, and at that time it was very much in news ki which countries or what is the role of the neighboring countries of Afghanistan. Right? Uzbekistan क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं. That's why 2023 में they ask about Ukraine because 2022 में Ukraine war start हुआ and that's why they have started about Ukraine. 2024 में they ask about Red Sea. Red Sea is linked to Israel and Palestine. So अभी कहां से पूछ सकते हैं? सीरिया, इजराइल, कनाडा, मेक्सिको, साउथ चाइना सी, ताइवान, गल्फ ऑफ मेक्सिको, नाउ इट्स गल्फ ऑफ अमेरिका. राइट. सो अल्टीमेटली द प्लेसेस जो न्यूज में हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं वहां से आप पूछ सकते हो. पनामा. राइट. सो हर बार पूछ रहे हैं. जैसे एक चीज यूपीएससी ने कर रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है, बार बार पूछता है. तो ऐसे ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. और एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस साल के या लास्ट ईयर के जो यूपीएससी और एग्जाम कंडक्ट कराता है, स्पेशली जियो साइंटिस्ट, CAPF, CDS,
ये 3 एग्जाम पे भी आपको फोकस रखना है कि यहां क्या पूछ रहे हैं, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया, जैसे ये लास्ट ईयर ही देखो, जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में ये पूछा गया जननी सुरक्षा योजना पे उस साल, ठीक है, 23 में ही प्री में भी पूछ लिया जननी सुरक्षा योजना पे, राइट। ऐसे कई सारे एनडीए के भी क्वेश्चंस थे जो एनडीए में पूछे, सीडीएस में पूछे और फिर यहां पूछ लिए। तो एटलीस्ट जो 3-4 अदर एग्जाम्स हैं जो उस साल यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसको भी एक बार देखो, और वहां से भी आप अपने नोट्स और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। देन हाउ टू मेक नोट्स, जो मैं कह रहा हूं 1 पेजर 2 पेजर नोट्स फॉर प्रीलिम्स। तो मोटा मोटा आपको ये सारी चीजें, दिस इज द फॉर्मेट थ्रू विच यू कैन मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स। तो इसमें आप जो है फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हो, टाइमलाइन का यूज कर सकते हो, वन लाइनर का यूज कर सकते हो, सर्कुलर डायग्राम बना सकते हो स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, मैप्स का यूज कर सकते हो और चार्ट्स बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर में आप या तो इस तरह से कर सकते हो कि दिस इज द वे यू कैन डू, कि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे वैदिक एज, ऐसे आप एज वाइज डिवाइड कर सकते हो कि हर एज के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो न्यूज में हो और उनका मतलब क्या था। सो दैट्स हाउ आपका 5 से 6 पेज में पूरा आपका वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स पे भी पूछ ही रहे हैं, राइट। तो एक तो आपका ये हो गया कि आप इसको वर्ड्स में, वर्ड का मतलब, सो दीज आर कॉल्ड एज वन लाइनर नोट्स। तो वन लाइनर नोट्स आप ऐसे बना सकते हो, या फिर आप मैप बेस्ड भी बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मौर्य के जो पिलर्स हैं, तो आप मैप बनाओ, मैप में शो कर दो कि भाई कौन कौन से माइनर है, कौन कौन से मेजर हैं। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। देन यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स और इस टाइप से, जैसे क्रोनोलॉजी वाइज। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि क्रोनोलॉजी पे भी यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ लेट एवरी ईयर। तो क्रोनोलॉजी वाइज आप क्या कर सकते हो कि एक एक एज को लो और आप उस एज में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। कौन कौन से कंटेम्पररी लीडर्स थे, सेंट्स थे, क्योंकि ये भी यूपीएससी पूछ रहा है कि ये सूफी सेंट या ये भक्ति सेंट इसके कंटेम्पररी थे। तो ये भी आप क्रोनोलॉजी वाइज इस तरह से बना सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली इस तरह से टेबल वाइज भी बना सकते हो, स्पेशली जहां पे यू आर डूइंग कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती में डायमेंशंस आइडेंटिफाई करो कि किन किन डायमेंशंस पे यूपीएससी पूछ रहा है, एंड देन यू कैन मेक नोट्स। फाइनली यू कैन ऑल्सो मेक पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स। फॉर एग्जांपल जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म है, तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में वी ऑल नो दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जहां से यूपीएससी पूछ रहा है। तो आप जब यू आर मेकिंग नोट्स फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यू हैव टू सी कि इन डायमेंशंस को आप अपने नोट्स में कवर कर रहे हो, ठीक है ना।